ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਟੈਂਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਵੀ ਵਿਲ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਟੈਂਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਟੈਂਡਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਥ ਆਫ ਬੀਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, and that's why these particles are responsible for the scattering of light। जो particles ने light ਨੂੰ scatter ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, light ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, and that's why the light passes through the solutions, and this light is known as bluish light। ਇਹ ਜਿਹੜੀ light ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ bluish colors ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ solutions ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ solutions ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ that is in a ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਨ, ਤੇ ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਕੋਨ ਮੀਨਸ ਦ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੋਨ ਆਫ ਦ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਂਡਲ ਕੋਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡਲ ਕੋਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਉਨ ਐਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਕੋਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। And this scattering of particles through the collider particles ਦੇ through ਜੋ collider particles light ਨੂੰ scatter ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ path of light is visible means ਜੋ light ਦਾ path ਹੈ ਉਹ visible ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This process is known as Tyndall effect, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ Tyndall effect ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕਲੀਅਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is heterogeneous nature। ਹੈਟਰੋ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਇਨ ਨੇਚਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਟੈਂਡਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਟੈਂਡਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੈਂਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। these are the two conditions। first condition is the diameter of the dispersed phase should not be too small than the wavelength of light used। ਕੀ मतलब है इसका? according to this जो diameter है dispersed phase ਦਾ, dispersed phase are the collider particles that are present in the collider solutions ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ dispersed phase ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ dispersed medium ਹੈ। ਜੋ dispersed phase ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। let us see about this। देखो, this is the collider particles ਜਾਂ dispersed phase बोलने हैं। this is the diameter, इसका diameter है। सेकेंड ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ wavelength, जिस लाइट ਦੀ ਅਸੀਂ wavelength पास कर रहे हैं। let us assume कि this is wavelength। वेवलेंथ की है दो करस्ट, कंजिक्यूटिव करस्ट या फिर ट्रफ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ
ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪੇरेबल ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अगर डायमीटर बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट we used, तो in that case that type of colloidals does not show the Tyndall effect। तो Tyndall effect ਦੇ ਲਈ जो first condition है that is diameter of the dispersed phase should not be too small than the wavelength of light used। wavelength of light ਦੇ ਨਾਲੋਂ जो diameter है dispersed phase ਦਾ that should not be too small। उस केस दे विच बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है बड़ा है तो उस केस दे विच टिंडल इफेक्ट शो होएगा। सेकंड कंडीशंस दैट इज नीड फॉर द टिंडल इफेक्ट दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द रिफ्रैक्टिंग इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की है? Refractive indices है bending of light when light passes from one medium to another medium। ਜਦੋਂ लाइट एक साइड तो दूसरी एक मीडियम तो दूसरे मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ इंटर कर रही है तो लाइट कितनी बेंड हो रही है, वो बेंडिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो कितनी बेंड हो रही है, दैट इज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं, दैट आर द सेम थिंग। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है डिस्पर्स्ड इंडिसेस है डिस्पर्स्ड फेस का ते डिस्पर्स मीडियम का वो आपस के विच बहुत ज़्यादा डिफर करना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर सिमिलर होएगा तो असी डिफरेंशिएट नहीं कर पावांगे कि डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्स्ड फेस की लाइट नू स्कैटर कर रहा, क्योंकि स्कैटरिंग जो हो रही है दैट इज ड्यू टू डिस्पर्स्ड फेस दी करके हो रही है। तो दैट्स वाई जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है बेंडिंग ऑफ लाइट है डिस्पर्स्ड मीडियम दी ते डिस्पर्स्ड फेस दी दैट शुड बी डिफर ग्रेटली, वो आपस दे विच काफ़ी ज़्यादा डिफर होनी चाहिए है। अगर ये दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो रही ने तो उस तरह का जो कोलाइडल होएगा दैट शो द टिंडल इफेक्ट। हुण टिंडल इफेक्ट दी एप्लीकेशंस देखते हैं। सिनेमा हॉल दे विच तुसीं सारे ही गए होंगे। सिनेमा हॉल दे विच जो स्क्रीन दे उपर बहुत वड्डी सारी स्क्रीन के उपर सानू फिल्म दिख रही है दैट इज़ ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट दे करके दिख रही है क्योंकि स्क्रीन एडी वड्डी नहीं हुंदी, जस्ट एक स्क्रीन लगाई हुंदी है उस दे उपर लाइट फॉल हो रही हुंदी है। लेट अस सी हाउ द लाइट फॉल ऑन द सिनेमा स्क्रीन। देखो बच्चों दिस इज द स्क्रीन ऑफ अ सिनेमा। ये तुहाडी स्क्रीन है सिनेमा हॉल दी। ते जदों असीं एक कॉर्नर दे विचों हॉल दे किसी कॉर्नर दे विच लाइट फॉल आउट हो रही है, तो जदों लाइट फॉल आउट होगी क्योंकि उस रूम दे विच डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेस का काम करनगे। जो डस्ट पार्टिकल्स रूम दे विच हॉल दे विच प्रेजेंट है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे जदों लाइट इस तो फॉल होएगी तो डस्ट पार्टिकल्स उस लाइट नू स्कैटर करनगे एक कोन दी फॉर्म दे विच। तो जदों एक कोन दी फॉर्म दे विच लाइट स्कैटर होएगी स्क्रीन दे उपर तो असीं ईजली उत्थे फिल्म पिक्चर्स बहुत ईजली तरीके दे नाल देख सकते हैं। इस दे विच की है सिर्फ एक लाइट बीम ऑफ लाइट पास की जाती स्क्रीन के उपर। जो वो लाइट नू स्क्रीन के उपर पास कर रहे हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स हवा दे विच प्रेजेंट ने दीज डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट। जो एक सोर्स के विचों लाइट आ रही है उस लाइट नू स्कैटर कर रहे हैं। मीन जो एक पार्टिकल्स लाइट नू अगे होर स्कैटर कर रहे हैं, होर पार्टिकल्स उसनू होर स्कैटर कर रहे हैं। लाइक इन द सेम वे जो लाइट है वो स्क्रीन के उपर पै रही है तो असी हॉल दे विच स्क्रीन के उपर फिल्म देख सकते हैं। तो सिनेमा हॉल जो बने होंगे हैं दैट आर इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बेसिस जो डस्ट पार्टिकल है वो तुहाडी कोलाइडल सॉल्यूशंस का काम करेंगे, कोलाइडल का काम करेंगे, डस्ट पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेस का काम करेंगे।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੀਟਰ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो then the light from a source fall on a screens and we can see very clearly the pictures that are displayed on the screen, and this is the Tyndall effect. Now we will discuss the importance of Tyndall effect, where we use the Tyndall effect. Importance of Tyndall effect. Tyndall effect is used to devise an instrument that is called ultra microscope. जो टेंडल इफेक्ट है इसनू यूज़ किया गया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नू बनाने के लिए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दे विच डिवाइस करने के लिए। तो इस दे विच की है जदों असीं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दे अंडर कोलाइडल पार्टिकल्स नू रखिया तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ने इस दे विच की फाइंड आउट किया कि कोलाइडल पार्टिकल्स दा साइज मीनस इस दे विच असीं देखिया है कि पार्टिकल्स जो है वो कोलाइडल दी रेंज दे विच है या नहीं है। मीनस जदों असीं किसी भी तरह के सोल्यूशनस नू चैक करना चाह रहे हैं कि वो कोलाइडल है, ट्रू सोल्यूशन है या सस्पेंशन है, तो उस केस दे विच वी यूज़ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो असीं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नू यूज़ करांगे, यूज़ करने नाल उस दे विच लाइट पास करांगे। अगर उस सोल्यूशनस दे विच लाइट पास हो रही है तो इस दे विच जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट नू स्कैटर करनगे, तो वी कैन सी थ्रू द माइक्रोस्कोप द पार्टिकल्स ਸਕੈਟਰਸ ਦਾ ਲਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ दैट इज ब्लैक इन कलर। मीन जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक दिखेगा, कोलाइडल जिस दे विच लाइट विजिबल है, लाइट पास हो रही है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो हमेशा वाइट होंगे लाइट दे विच। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइस्ड बाय द जिगमॉन्डी इन 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਮੌਂਡੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਦਿਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨੂੰ यूज़ कर रहे हैं। इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की एक लिमिटेशन है कि इस दे थ्रू असी शेप एंड साइज़ नहीं प्रडिक्ट कर सकते। शेप एंड साइज़ के बारे च सानू नहीं पता लगता, असी सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज। मीनस ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो इस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट ने कि वो पार्टिकल कोलाइडल की रेंज दे है या नहीं है, या फिर ट्रू सॉल्यूशंस दे है या फिर सस्पेंशंस दे है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ Tyndall effect through which Zygmundi devised the instrument that is ultra microscope through which we can find out the solutions is in the range of colloidals or not. Now we will come on the next optical property, that is color. The first colligative property that we discuss is Tyndall effect। Tyndall effect is very important। Tyndall effect ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਕਿ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਅ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟਰਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कोलाइडल पार्टिकल्स जो भी असी सॉल्यूशन यूज़ करांगे, मिल्क है, ब्लड इज़ रेड इन कलर, मिल्क इज़ वाइट इन कलर, तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर ऑलवेज मोस्टली कलर्ड इन नेचर दे विच कलर्ड हुंदे ने। तो हाउ द कलर डिफर इन द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑन द साइज, शेप एंड पार्टिकल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। कलर, that is the second optical property
ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਨੇ ਕਲਰਡ ਨੇ ਨੇਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾइज है, शेप है या फिर नेचर है, दैट डिटरमाइन द कलर। साइज, शेप एंड नेचर तो सानू पता लगता है कि सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस का कलर कैसा होएगा। सब तो पहले गल करते हैं गोल्ड का एक सोल लै रहे हैं। जो गोल्ड के सोल के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे ने, जो पार्टिकल छोटे होंगे तो उस केस दे विच सॉल्यूशंस का जो कलर है दैट इज रेड। एज द साइज ऑफ कोलाइडल सोल्स इंक्रीज, जिमें कोलाइडल सोल द पार्टिकल्स द साइज बड़ा होएगा, इंक्रीज होएगा, द कलर चेंज फ्रॉम रेड टू पर्पल। एंड व्हेन इन केस ऑफ पर्पल्स द साइज ऑफ पार्टिकल्स वंस अगेन इंक्रीज, जो फिर इंक्रीज होएगा पार्टिकल्स, उस केस दे विच कलर फिर तो चेंज हो जाएगा पर्पल टू ब्लू। एंड सिमिलरली जो ब्लू तो होर ज़्यादा बड़े होंगे, सोल बनेगा कोलाइडल की फॉर्म के आएंगे तो कलर चेंज होएगा ब्लू टू गोल्डन। दिस इज़ द गोल्ड सोल। इस जो पार्टिकल है वो गोल्ड सोल दे ही है, एक प्रकार दे ही है। पार्टिकल छोटे है, कलर डिफरेंट है, पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज हो रहा, साइज इंक्रीज होने नाल कलर चेंज हो रहा। तो वी कैन से दैट चेंज इन साइज चेंज होने दे नाल कलर आल्सो चेंज। तो इस दे नाल जो कलर है वो भी तुहाडा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो गोल्ड के सोल दे विच सब तो पहला रेड सी, जो पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा सी, जिवें जिवें पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज हो गया, पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज होने दे नाल जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। इट मीनस जो कलर का मैं तुहानूं पहला सैकेंड पॉइंट दे विच कहा कि जो साइज है, शेप है या फिर नेचर है, उस दे नाल सानूं कलर दा पता लगता है कि कोलाइडल सोल का कलर कैसा होएगा। एक होर फैक्टर जिसके ऊपर कलर डिपेंड करता, दैट इज द मैनर बाय विच लाइट फॉल ऑन द किस मैनर दे नाल लाइट फॉल हो रही है कोलाइडल सॉल्यूशंस दे ऊपर, इस दे नाल भी कलर दे ऊपर इफेक्ट पैंदा है। अगर तुसी लाइट इफेक्ट कर रहे हो, रिफ्लैक्टेड लाइट यूज़ कर रहे हो, उस दे नाल कलर कुछ हो रहेगा। जो तुसी ट्रांसमिटेड लाइट यूज़ करोगे तो कलर कुछ हो रहेगा। मान लो असीं मिल्क के केस दे विच लै रहे हैं, मिल्क है, जो मिल्क के ऊपर तुसी रिफ्लैक्टेड लाइट पा रहे हो, रिफ्लैक्टेड लाइट पाने दे नाल इसका जो कलर सानू शो होएगा दैट इज ब्लू इन कलर, ब्लू होएगा कलर से विच। ते जदों तुसी इस दे ऊपर ट्रांसमिटेड लाइट फॉल करा रहे हो, इसी सॉल्यूशन के ऊपर जदों ट्रांसमिटेड लाइट पाओगे तो उस दे नाल इसका कलर रेड हो जाएगा। मीन जदों तुसी ट्रांसमिटेड लाइट यूज करोगे तो कलर तुहाडा रेड आएगा। अगर तुसी रिफ्लैक्टेड लाइट यूज कर रहे हो तो कलर तुहाडा ब्लू आएगा। तो दिस इज द मैनर कि तुसी किस तरह की लाइट फॉल करवा रहे हो सॉल्यूशंस के ऊपर, उस दे नाल भी कोलाइडल सॉल्यूशंस का जो कलर है वो चेंज होंदा है। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया, अगर असीं मिल्क लै रहे हैं, मिल्क के अंदर जो रिफ्लैक्टेड लाइट पास कर रहे हैं, मिल्क लुक लाइक अ ब्लू कलर, बट व्हेन वी फॉल द ट्रांसमिटेड लाइट ऑन द मिल्क द कलर चेंजेस टू रेड। तो इस दे नाल कलर चेंज हो रहा। तो जो कलर है लाइट दे नाल इफेक्ट पै रहा उस दे ऊपर। तो दो तरीके ने जिस दे नाल कलर जो कोलाइडल सॉल्यूशंस दा वो फिक्स हुंदा है। दैट फर्स्ट है कि शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑन विच द कलर ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशंस डिपेंड। एंड सैकेंड इज द मैनर बाय विच यू फॉल द लाइट, किस तरीके की लाइट तुसी उस दे ऊपर फॉल करा रहे हो, रिफ्लैक्टर, ट्रांसमिटर या होर किसी वे दे नाल तुसी उसके ऊपर लाइट फॉल करा रहे हो, वो तुहाडा कलर डिसाइड करेगा कोलाइडल सॉल्यूशंस का कलर कैसा होएगा। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट टेंडल इफेक्ट एंड सेकंड इज कलर अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल कम ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस अबाउट द कोलाइड्स इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਾइडल्स ਦਾ सॉल्यूशन है,
ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਤੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ कि जो ट्रू सॉल्यूशंस है पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो जो कोलाइडल द सॉल्यूशन है उसके अंदर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है। तो दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड अनदर एंड लाइक इन द सेम वे, दैट इज कंटिन्यूस मोशन, कंटिन्यू मोशन of the particles, colloidal particles ਦਾ कंटिन्यू motions एक साइड तो दूसरी साइड तो तीसरी साइड, इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ जो particles है वो एक दूसरी साइड जा रहे हैं, कंटिन्यूस मोशन हो रहा। तो इस कंटिन्यूस मोशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ zigzag motion। zigzag motion ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? motion as you know the particles when move from one space to another, one place to another place। तो zigzag ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Zigzag means there is no particular directions of the particles to go। particles ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ particular directions ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। particles ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। there is no particular directions in which the particles move and this type of motion is known as zigzag motions। ਜਿਵੇਂ dust particle ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮੋਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਬਾय द ब्रिटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ब्रिटिश बॉटनिस्ट से जिसने 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व किया कि कोलाइडल पार्टिकल्स ਦਾ नेचर भी जिगजैग मोशन है। पार्टिकल्स आपस ਦੇ ਵਿੱਚ मूव कर रहे ਨੇ ड्यू टू जिगजैग मोशन, कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऐसी फोर्स एक्ट कर रही है जो पार्टिकल्स ਨੂੰ मूव करा रही है वन साइड टू अनदर साइड। उसने इस एक्टिविटी ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ, ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ? ਅੰਡਰ ਅਲਟਰਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੈਟ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਾਈਡ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ zigzag motions। this zigzag motions of the particles of the colloidal solution is known as Brownian movement। Brownian movement की है? that is based on the zigzag motions of the particles of the colloidal solutions of the dispersed phase and dispersed medium। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? dispersed phase ਦੇ ਜੋ particle ਹੈ that collide with the dispersed medium's particle। dispersed phase ਦੇ dispersed medium ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ dispersed phase ਦੇ dispersed phase ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ collide ਕਰ ਰਹੇ ਆ। collisions ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ particles ਦਾ motion ਹੈ ਉਹ continue ਹੈ, क्योंकि इस मोशन ਨੂੰ फाइंड आउट किया सी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑन हिज नेम दिस मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहने हैं? क्योंकि इसਨੂੰ रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड आउट किया सी कि जो मोशन है कोलाइडल पार्टिकल ਦਾ ਉਹ zigzag मोशन है, मीनस ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ the Brownian movement is independent from nature of particles। particles ਦਾ nature ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ Brownian movement ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। let us see as we already see in the color, that is optical properties in which the particles changes of a gold soul। गोल्ड सोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 골ਡ ਦਾ ਸੋਲ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ 골ਡ ਸੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਪਲ। ਉਹੀ 골ਡ ਸੋਲ ਪਰਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
जो पार्टिकल्स का साइज है इंक्रीज हो गया तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ that is look like a blue color। तो ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ that look like a golden color। ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 골ਡ ਦੇ ਸ਼ੋਲ। तो देखो जिवें पार्टिकल्स का साइज डिक्रीज हो रहा, साइज डिक्रीज, पार्टिकल्स का साइज डिक्रीज हो रहा तो इस दे नाल जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की किस दी सब तो ज़्यादा होएगी, जो पार्टिकल छोटे है, मीनस इस दे विच जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होएगी, क्योंकि पार्टिकल जिन्ने ज़्यादा छोटे होंगे उन्ना ज़्यादा उन्हां दे विच मोशन होएगा। पार्टिकल अगर बड़े है तो दैट इज सैटल डाउन, कि उन्हां दे विच मोशन उन्ना ही ज़्यादा स्लो होएगा, क्योंकि हुण रेड कलर दे विच पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे है, दैट्स वाई द ब्रोनियन मूवमेंट इज मैक्सिमम इन रेड कलर। रेड कलर दे विच सब तो ज़्यादा होएगी, आफ्टर दैट पर्पल दे विच थोड़ी जी घट होएगी क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इनक्रीज हो गया, एंड दैन दैट इज लैस इन ब्लू एंड गोल्डन दे विच सब तो घट ब्रोनियन मूवमेंट होएगी क्योंकि पार्टिकल्स का साइज की है इंक्रीज हो गया। तो दैट इज द फैक्टर कि जो ब्रोनियन मूवमेंट है वो साइज ते विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। साइज मैं तुहानूं दस्सिया कि साइज जिवें जिवें डिक्रीज होएगा ब्रोनियन मूवमेंट इंक्रीज होएगी, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा तो इस दे नाल विस्कोसिटी की होएगी तुहाडी इंक्रीज होएगी, इस दे नाल तुहाडी वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो इस दे नाल तुहाडी ब्रोनियन मूवमेंट इंक्रीज होएगी। सॉरी, जदों तुहाडा साइज डिक्रीज हो रहा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज होएगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होएगी तो ब्रोनियन मूवमेंट भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो जिवें इस दे विच पार्टिकल्स लैस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इस दे विच विस्कोसिटी घट है, पार्टिकल्स थोड़े जे इंक्रीज हो गए तो इस दे विच की है कि विस्कोसिटी इस दे नाल घटनी स्टार्ट हो जाएगी। पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन है लुक लाइक अ वाटर, तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत ही घट होंदी है। हनी जिन्हां दे विच पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होंदे ने तो उन्हां दे विच विस्कोसिटी ज़्यादा होंदी है। विस्कोसिटी इज द टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की फ्लो करने की टेंडेंसी विस्कोसिटी है, जिन्ना बड़ा साइज होएगा उन्नी विस्कोसिटी उस दे विच ज़्यादा होएगी। तो हुण इस दे विच पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, ट्रू सोल्यूशन है, विस्कोसिटी इस दे विच घट होएगी। तो जिवें जिवें साइज डिक्रीज हो रहा है विस्कोसिटी घट रही है तो इस दे नाल ही ब्रोनियन मूवमेंट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्लाइड्स एंड नेक्स्ट इज स्टीयरिंग। ਅਸੀਂ स्टीयरिंग इफेक्ट ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस करांगे। स्टीयरिंग मीन्स कि जो क्लाइडल से पार्टिकल्स है कदे भी सैटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहेंगे वन साइड टू अनदर टू अनदर, कि पार्टिकल्स हमेशा मोशंस दे विच रहेंगे। क्लाइडल्स जिवें मिल्क देखते हैं, मिल्क कदे भी सैटल डाउन नहीं होंदा बॉटम के उपर, क्योंकि वो की है क्लाइडल नेचर का, क्योंकि उसदे विच पार्टिकल हमेशा मोशंस दे विच रहिंदे ने, स्टीयरिंग कर रहे हैं आपस दे विच, ते इस दे विच की है कि मोशन स्टीयरिंग हो रही है आपस दे विच, उस दे नाल भिड़ रहा, इस तरीके दे नाल पार्टिकल्स दी मोशंस हो रही है, तो स्टीयरिंग इफेक्ट कंटिन्यू रहता है ड्यू टू ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट दे करके स्टीयरिंग इफेक्ट क्लाइडल्स दे विच कंटिन्यू रहता है। ड्यू टू स्टीयरिंग इफेक्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लाइड्स पार्टिकल्स। क्लाइड पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी ही इस बेसिस पे है क्योंकि इस दे विच ब्रोनियन मूवमेंट हो रही है, स्टीयरिंग इफेक्ट हो रहा, दैट्स वाई द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइडल सोल इज मैक्सिमम, क्योंकि उस दे विच जिन्नी ज़्यादा ब्रोनियन मूवमेंट होएगी उन्नी स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट इज वेयर वी नोट द ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट इज द डायरैक्ट डेमोनस्ट्रेशन ऑफ द किनेटिक थ्योरी। जो तुसी किनेटिक थ्योरी च पढ़ते हो कि गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहे हैं, लाइक इन द सेम वे ब्रोनियन मूवमेंट दे विच भी पार्टिकल जिग जैग मोशंस नू फॉलो करते हैं। तो जिग जैग मोशंस इज कंप्लीटली डेमोनस्ट्रेशंस ऑफ द किनेटिक थ्योरी, दैट इज सीजलेस मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट द एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एक्टिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल ऑफ अ क्लाइड्स। क्लाइड्स के पार्टिकल क्यों नहीं नीचे सैटल डाउन होंगे? मिल्क दे विच नीचे मिल्क क्यों नहीं सैटल डाउन होंदा? क्योंकि वो क्लाइडल नेचर का है, पार्टिकल्स उस दे विच की है एक साइड तो दूसरी साइड मोशन कर रहे हैं। जिवें देखो प्लैनेट है सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी,
क्योंकि इन्हां दे विच फोर्स ऑफ ग्रैविटी है जो सन एंड प्लैनेट्स नूं आपस दे विच बाइंड आउट करके रखती है ते जिस दे नाल प्लैनेट उसके आसे पासे घूमते रहते हैं। लाइक इन द सेम वे जो पार्टिकल है कोलाइड्स के उन्हां दे उपर भी फोर्स ऑफ ग्रैविटी एक्ट करती है ते जिस दे करके जो पार्टिकल है कोलाइड दे वो सैटल डाउन नहीं होंदे, वो कंटीन्यूअसली मोशनस दे विच रहिंदे ने ते जिस दे करके कोलाइडल सॉल्यूशंस दी स्टेबिलिटी हुंदी है। दैट्स ऑल फ्रॉम द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिस दे विच असीं स्टडी कीता है ब्रोनियन मोमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस इज इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दे अंडर असीं 4 प्रोसैस स्टडी करांगे। दैट फर्स्ट इज इलैक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल दे उपर इलैक्ट्रिक चार्ज दे बारे दे विच। सैकेंड इज इलैक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड इज इलैक्ट्रोऑस्मोसिस एंड फोर्थ इज कोएगुलेशन ऑफ सोल्स। इस दे विच स्टडी करन तो पहला असीं सब तो पहला स्टडी करदे हां चार्ज के बारे दे विच। इलैक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। देखो बच्चों, चार्ज मैं तुहानूं दसदा कि जदों भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशंस दी हर पार्टिकल्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होंदा। जिवें देखो साडे कोल एक कोलाइडल सोल है, कोलाइडल सोल्स दे विच जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इन्हां दे ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होएगा। आइदर इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। मीन्स सपोज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। Similarly, the particles of collides can have the negative charge. तो बच्चों देखो, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज तो होएगा, चाहे वो नेगेटिव होवे या पॉजिटिव होवे। यही चार्ज है, ये नहीं हो सकता कि अगर किसी पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, तो उससे सॉल्यूशंस के ऊपर इसी सॉल्यूशंस के अंदर किसी पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर किसी सॉल्यूशंस के विच कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स सारे पार्टिकल्स के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सोल इज नाउन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। उसे सॉल्यूशंस के विच किसी पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। सिम लाइक इन द सेम वे अगर सोल दे विच पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इन दैट केस देयर कैन बी नो पार्टिकल्स विच हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सोल इज नाउन एज नेगेटिव चार्ज्ड सोल। तो उस केस दे विच असीं उन्हां नूं नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दसांगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज सोल्स, अगर पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज सोल। तो ये नहीं है कि पार्टिकल्स के ऊपर एक दे ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव होएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। या तो सारे के ऊपर पॉजिटिव होएगा या फिर सारे ही पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा। ये नेगेटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज है अगर सारे पार्टिकल्स के ऊपर, एज यू नो सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर। सिमिलर चार्ज आपस दे विच एक दूसरे नूं रिपेल करनगे एंड दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स की जो स्टेबिलिटी है वो इसी ते बेसिस है। सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर, जो आपस दे विच कंटैक्ट च आएंगे तो पार्टिकल एक दूसरे नूं रिपेल करनगे, तो पार्टिकल एक दूसरे तो दूर जा रहे ने, जिगजैग मोशन हो रहा, तो मोशन हो रहा तो दैट इफेक्ट द स्टीयरिंग इफेक्ट हो रहा। इट मीनस स्टेबिलिटी कोलाइडल पार्टिकल्स दी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है तो सब दे ऊपर सेम होएगा, सेम चार्ज एक दूसरे नूं रिपेल करनगे। चार्ज अगर एक दूसरे नूं रिपेल करनगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे तो दूर रहेंगे, मोशंस ब्रोनियन मूवमेंट होएगी एंड दैट इज स्टेबल होएगी। तो देखो बच्चों, जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव दे विच है देखो ये कुछ तुहाडे सोल ने जो पॉजिटिवली चार्ज ने। मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई है जो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, क्रोमियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ऑल दीज सोल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव सोल, दैट इज स्टार्च, कॉपर, गोल्ड, एसिड ड्राई, दैट इज कॉन्गो एसिड। ऑल दीज साल्ट्स आर द नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, कोएगुलेशंस ऑफ सोल्स ते इलैक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे विच ब्रीफ डिस्कस असीं नैक्सट एपीसोड दे विच करांगे। अज दे टॉपिक दे विच अगर तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम है तो तुसीं साडे WhatsApp नंबर दे उपर कमेंट कर सकदे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।